Yes, sir. Okay. And we are on question number 83 of Hinship. Please have your Hinship particulars stand by with you. So open up your Hinship particulars to trim tables. It's on page number somewhere around 30 of my book. सर क्या बोला आपने सर ऊपर पेज Open up Hinship particulars, पेज नंबर 30 के करीब. Trim tables. trim table as various trims sir. Correct. So is everybody there on page number 30? Yes sir. So 28 29 पे भी है. Okay, fine. ठीक है. So basically, as you can see, 28 से शुरू हो जाता है. Trim tables at various frames. And 27 पे भी है. So what this means is basically that if I fill up my tank, let's say 4-peak tank with 106 tons capacity, okay, and if my mean draft, let's say, is 5 meters, then my forward draft will go down by 24 centimeters, 24.8 centimeters. That is the meaning of it. सर ये जो आपने 30 पेज पे खुलवाया है उसमें तो सर वो है. चलो अभी आप 20, चलो मैं आपको, कैन यू कम टू पेज नंबर 27 जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त. आई एम showing you something on page number 27 right now. सर 27 पे भी मेरे में वो ये डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ लोड फ्रॉम 5 on meters 3A 6A 9A. Can you see whatever you're seeing on your screen right now? 26 पे sir. Can you open up this page what I'm trying to show you? हाँ सर. ओके सर 26 पे सर. तो ये वाला पेज खोल लो. ओके सर. ठीक है. Come to the second line, 4-peak tank. यस सर. Okay. 4-peak tank के आगे क्या लिखा है? Water ballast. यस सर. Capacity 106.1 tons. Yes. अच्छा, supposing my draft is 5 meters, mean draft 5 meters. तो forward के आगे क्या लिखा है? Plus 24.8. Plus Plus 24. 24.8 centimeter immersion. ऊपर पढ़ो. Change in draft in centimeter when each tank is filled up. Plus for immersion, minus for opposite of immersion, यानी कि immersion. मतलब coming out. So what does this mean? अगर मैं 4-peak tank को बैलेंस करता हूँ फुल 106 टन, तो मेरा forward draft will go down by 0.248 meters. Do you all agree on that? यस सर. Yes, sir. And my arm Yes, sir. draft will come up by 0.151 meters. Do you agree to this? यस सर. Yes sir. Yes, sir. Okay. Now, let me unshare my screen. Okay. Now let me try to reason this out, whatever I just discussed with you. That means मेरा forward draft, half draft. अगर मेरा draft 5 मीटर है, supposing मेरा forward draft, video hang हो गई? Nobody can see it? Nice. No, नहीं sir. सर, चल रही है सर. दिख रहा है. तो जरा जिसको नहीं दिख रहा है एक बार जरा लॉग आउट करके लॉग इन कर लो. जस्ट मतलब लीव द रूम एंड देन जस्ट कम बैक. Okay. So supposing my forward draft is 4 meters, half draft is 6 meters. What is my mean draft? 5 meters. 5.5. This is my mean draft. So if I am going to do my ballasting of 4-peak full, okay, ballast 4-peak tank full, then as per the trim table, my bow will go down by how much? 0.248. 0.248 meters. 0.2. Yes. My arm draft
will come up by how much? 15.1. So 0.15. 0.15. Do you agree to this? Yes, sir. Yes, sir. Supposing I had deballasted my forepeak, then the sign would have reversed. Opposite हो जाएगा सर. Yes, sir. Yes, sir. That means my bow would have come up. So that means ये minus होता, ये plus होता. बाकी Yes. सब कुछ same रहता. अगर Yes, सर sir. डिस्चार्ज करेंगे तभी होना है ये केस, हाँ जी. बट कंप्लीट डिबैलेस्टिंग करेंगे तभी ये केस. Yeah, complete deballasting. तो forepeak पूरा. Yes, sir. तो अगर मैंने बैलेस्टिंग करी तो मेरा फाइनल ड्राफ्ट इतना बन जाएगा एंड माय आफ्टर ड्राफ्ट इतना बन जाएगा, जो भी आता है वैल्यू. ठीक है. तो कहने का क्या मतलब है? What is this trim tables a method of? It is quickly ascertain the final drafts forward and aft. So when are these tables used? They are used when we are finishing off the loading or discharging. So basically we are talking about topping off time in tanker terms, but when we are topping off, we're just about to complete. So, or we have to finish off load to a certain maximum draft. That means there is some draft limitation, and that will happen when there is some depth limitation. There is some depth limitation. कि कोई एक बार है जिसको क्रॉस करना है, तो उतना मेरा ड्राफ्ट होना चाहिए जितने ड्राफ्ट को मैं लेके जा सकूं. तो कितने टन मैं लोड करूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So what is the process? The process is generally, so when we are this, when is this happening? When we are loading in a river port, because generally river port होती है तो लिमिटेशन आती है मेरी, तब मेरी डेप्थ की लिमिटेशन आती है. तो जब मैं रिवर में करता हूँ लोड, तो मेरे को एक ड्राफ्ट पे सेल आउट करना है. सपोजिंग आई हैव टू लोड and I'm finishing off. So what do? We stop the loading about 1,000 tons prior completion. We stop the loading about 1,000 tons prior completion. 1000 टन जब बचा होता है कार्गो तो हम रोक लेते हैं. What do we do at that stage? A draft survey is carried out. A draft survey is carried out. Actual quantity, actual cargo quantity, balance to load is ascertained. And now at this stage, once this is done, I know 1,000 tons is balance. So what will I do? 800 tons I will load in number 2, where I have space, hole number 2. So that will give me this much change of draft. And the balance I will load in number 5. That will give me another change of draft. And what will be my final drafts forward and aft. अभी मैंने लोडिंग करी नहीं है 1000 टन की, मैं असर्टेन कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कितना मेरा होना चाहिए. ये वो स्टेज है. ये समझ में आया जो मैंने अभी तक बताया? एनी डाउट्स? सर पूरा समझ में आया. आपने लाइन बोली थी सर कि 800 टन फॉरवर्ड में डाला तो इतना प्लस हुआ, तो वो कहां से आया 800 टन प्लस करने पे और 200 टन? ओके, बाकी सब ओके. सो ये जो है दूसरा पॉइंट लिखा हाँ सर. जी, दूसरा पॉइंट टॉपिंग ऑफ टाइम. टॉपिंग ऑफ तीसरा सर, तीसरे में मेन ड्राफ्ट लिखा है सर. लोडिंग अप टू सर्टेन मीन load to a certain maximum draft, certain max draft. मैक्सिमम ड्राफ्ट. ओके सर. When I have to load to a certain maximum draft with a depth limitation. ओके सर. सो पहला पॉइंट क्या लिखा है? पहला पॉइंट लिखा है फिनिशिंग ऑफ लोडिंग ऑब्लिक डिस्चार्जिंग. ठीक है. तो ये पहला पॉइंट सेम सेम है लगभग. हाँ जी, पहला और सेकंड पॉइंट ऑलमोस्ट सेम सेम है ना, टॉपिंग ऑफ और फिनिशिंग ऑफ बराबर. बिल्कुल ये 1 और 2 एकदम सेम है. यस. लास्ट लाइन है स्टॉप लोडिंग 1000 टन्स प्रायर कंप्लीशन. ये अप्रोक्सीमेट है, ये 1000 टन्स इज अप्रोक्सीमेट. इट कैन बी 500, इट कैन बी 800, इट कैन बी 600, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द शिप. So stop loading
1000 tons prior completion oblique draft survey is then carried out. मतलब इस completion यहाँ पे रोक दिया मैंने, अब draft survey करी. अब draft survey में क्या हम calculate करते हैं? Actual cargo quantity balance to load is ascertained. मतलब एक्चुअली सर हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली शिप पे प्रैक्टिस है कि सीधा लोडिंग नहीं रोकते, कर लेते हैं. हाँ, अब नाउ द क्वेश्चन व्हिच कम्स अक्रॉस इज कि डिपेंड करता है कि अब जैसे कि टैंकर्स में क्या होता है, हम लोग में कोई डेप्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो भाई मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम ड्राफ्ट 10 मीटर होना है, डेप्थ की प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई 14 मीटर तक है मेरे पास डेप्थ, सो आई गॉट नो इश्यूज, राइट. बट सपोजिंग यू आर लोडिंग इन सेंट लॉरेंस रिवर फॉर एग्जांपल, और यू आर लोडिंग इन हल्दिया एट हल्दिया ऑयल जेटी एंड देयर इज अ लिमिटेशन. नाउ अब कैसे करोगे? सपोजिंग देयर इज अ लिमिटेशन, लाइक हमारे टाइम पे जब हम लोग हल्दिया ऑयल जेटी पे लोड करते थे तो लिमिटेशन होती थी, 10 मीटर से ज्यादा लेता नहीं था हल्दिया ऑयल जेटी. अब जी आजकल सर, अभी अब अभी भी आजकल वो बाहरी बार्जेस पे डिस्चार्ज करते हैं, फिर हाँ, लाइटनिंग फिर करके अंदर लेके अब जाते हैं. वो बस वो लाइट रेंज हमारे टाइम पे वो लाइट रेंज अलाउ नहीं थी, तो इसलिए हम हल्दिया ऑयल जेटी पे जब जाते थे तो ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्शन होती थी 10 मीटर की, बस बात खत्म. तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर 10 मीटर की मेरी ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्शन है और एक टाइड के साथ मुझे बाहर भी निकलना है, तो मैं अगर 10 मीटर पे लोड कर रहा हूँ तो, और मुझे मैक्सिमम कार्गो भी लोड करना है एट द सेम टाइम दोनों, तो आई डोंट वांट टू एक्सीड 10 meters. So what will I do? How will I ensure that I don't exceed 10 meters and yet I maximize my cargo? So जब मैं 10 मीटर पहुंचने वाला हूँ, यानी कि मैं उसे 1000 टन पहले रोक लूंगा कार्गो को, एक ड्राफ्ट सर्वे करूंगा, एंड उसके बाद फिर मैं वो 1000 टन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा वो करूंगा, एंड देन आई विल कैरी ऑन. दैट्स हाउ वी डू. So on tankers we didn't do so much of a problem. Bulk carriers में if you're loading in river, there's always a problem in a river where you have a draft restriction. If you don't have a draft restriction, then there's no issue. तो आप लोड कर दो, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जनरली when you have to, because you have to load, you have to sail out at a certain trim, or you have to arrive at the next port with a even keel condition or a certain trim, then you have to do this, what you जैसे कहते हैं quickly ascertain, the quick fire way of ascertaining your draft. So this was how this is done. Your load indicator is programmed with this information, trim tables information. So your load indicator is programmed for this. If your load indicator is not working, what will you do? Will you stop loading? What will you do? You'll use trim tables. So how do you do that? So how do you do it? So let us now see that with this information given to us. So for the holds, ये तो टैंक्स के लिए मैंने बता रहा था. अच्छा, पॉइंट नंबर 6, फॉर द होल्ड्स trim tables values are given for plus 100 tons TF and TA are given. For holds, trim table values are given for plus 100 tons. That means अगर मैंने उस होल्ड में 100 टन का कार्गो लोड किया, plus 100 means that, then it will give me the change in trim forward and the change in trim aft will be given to me for each mean draft. For each mean draft. So let us try to see. I am now sharing my screen. Let me know when you can see my screen. Yes, sir. Okay. All right. So I'm going now to holds. So page number 28 पे आ जाओ. यहाँ से होल्ड का शुरू हो गया. ओके, अब ये है मीन ड्राफ्ट 3 मीटर्स. पेज नंबर 29 पे आ जाओ. ये है मीन ड्राफ्ट 5 मीटर्स. पेज नंबर 30 पे आ जाओ. ओके, 7 meters. Supposing my mean draft is 7 meters. So this will give me the changes in draft at aft perpendicular and forward. So TF and TA due to additional load of 100 tons. यानी कि अगर मैं 100 टन की लोडिंग करता हूँ, कहाँ पे करता हूँ? 39 फ्रेम, ये फ्रेम नंबर 188, 39 फॉरवर्ड, मतलब होल्ड नंबर 1 सपोजिंग मैं करता हूँ लोडिंग. ठीक है, सिंकेज इन सेंटीमीटर्स फॉरवर्ड एंड आफ्ट. सो फ्रेम नंबर 188 इज माई होल्ड नंबर 1 सपोजिंग. अगर मैंने 100 टन की लोडिंग करी तो मेरा बाव 23 सेंटीमीटर यानी कि प्लस 0.23 मीटर्स नीचे चला जाएगा. सिमिलरली मेरा स्टर्न
ऊपर आ जाएगा बाय 0.143 मीटर्स। तो इसका मतलब है मुझे फ्रेम पता होना चाहिए मैं कहाँ पे लोडिंग कर रहा हूँ, एंड उस फ्रेम से मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरा बाव और स्टर्न कितना जा रहा है। डू यू कॉपी दिस? Yes, sir. सो अगर मैंने 150 टन लोड किया होल्ड नंबर 1 में, देन मेरा फैक्टर 100 टन के लिए 23 सेंटीमीटर है फॉरवर्ड ड्राफ्ट, तो 150 टन के लिए मेरा फैक्टर बन जाएगा 1.5। यस सर। So the factor, so 23 multiplied by 1.5 will be my factor. ये समझ में आया कि नहीं लास्ट वाला पार्ट जो मैंने बोला? सर आवाज कट गई थी सर। Okay. ये फैक्टर वाला सर। ओके ओके, मैं वो दिखाता हूँ। I'll just show it to you. Let me just show you my screen. Show you my. सर ये जो फ्रेमिंग का है सर, ये मालूम हाँ। कैसे पड़ेगा कौन सा फ्रेम किस होल्ड में आ रहा है, कौन से टेबल से? Right. Yeah. So now because ये जहाज पुराना है, तो you will have to go on to the GA plan and check कि ये कौन सा फ्रेम आता है। अब आजकल के हमारे जितने भी स्टेबिलिटी बुकलेट होती है उसमें मुझे पता होता है माय होल्ड नंबर 1 इज फ्रॉम फ्रेम नंबर 166 to 188, समथिंग लाइक दैट। यस सर, लिखा होता है उसमें। उसमें लिखा होता है। तो अब मुझे पता है कि मेरा फ्रेम नंबर की स्पेसिंग ये है, इस नंबर से इस नंबर तक। तो सो फॉरवर्ड ड्राफ्ट, ऑफ ड्राफ्ट, लेट अस से 7 meters is my mean draft for 100 tons in hold number 1, and I'm talking about frame number supposing 188, supposing ये भाई ऐसी मैं रैंडम ले रहा हूँ। 100 tons के लिए my TF and TA for 100 tons is plus 23 and TA is minus 14.3. Is this line okay with everyone? ठीक है सर, टेबल से ले लिया। ये मैंने टेबल से ले लिया, यहाँ तक ओके है? यस सर। Everybody can see my board? So for 100 tons, this is the figure. So for 150 tons, how much will be my value? That means my factor is 1.5x. Agreed? That means for 100 टन इतना है, तो 150 टन के लिए कितना होगा? तो मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा by 1.5. This will give me the value. So 23 and 11, that means plus 44 के करीब, and this will be 14 and 7, 21, 21.3 approximately. Do you agree to these values? यस सर। Okay. अगर मैं होल्ड नंबर 1 में लोडिंग करता हूँ 150 टन की, तो मेरा फॉरवर्ड ड्राफ्ट will become 0.44 meters plus and my aft draft will become 0.213 meter minus. This is for 150 tons in hold number 1, frame number 188. So ये मैंने 150 टन इसमें डाल दिया। अब सपोजिंग मैंने अब 250 टन डाला होल्ड नंबर 4 में, जिसका फ्रेम नंबर सपोजिंग 75 है, और इसमें मैंने 250 टन डाला, तो कितना होगा? सेम मेथड मैं इसके लिए करूंगा। 2.5 विल बी माय फैक्टर। जो भी आएगी वैल्यू वहां से लूंगा टेबल से। हाँ सर। जो भी वैल्यू आएगी उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम फंडा यूज करूंगा, डिवाइड बाय 100 करूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा। यस। सो कहने का क्या मतलब है, ये प्लस ये माइनस, फिर ये माइनस ये प्लस, ऐसे मैं करते हुए जाऊंगा, एंड लास्ट में मेरा फाइनल ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड फाइनल ड्राफ्ट आफ्ट होगा। ये मेरे को मेरे कंप्लीशन ड्राफ्ट दे देगा। जो अच्छा सर, जो आप 800 बोल रहे थे वो तो 8 टाइम्स फैक्टर हो गया उसका, हाँ। तो 8 का उसमें ट्रिम लगा दिया, और जो हाँ। 200 टन पीछे डाल रहे हैं तो उसका फ्रेम नंबर से 202 फैक्टर ले लिया और फाइनल से ड्राफ्ट ले ली। करेक्ट? एब्सोल्युटली राइट। अगर मैं 800 टन डाल रहा हूँ तो उसका फैक्टर 8 हो जाएगा। हाँ सर। तो वो मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाएगा। जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, जितना भी मैंने कार्गो डिस्ट्रीब्यूशन करा है, करना चाहता हूँ, तो उसको मैं चेक कर रहा हूँ ताकि ये मेरे ड्राफ्ट्स, क्या मेरे ये ड्राफ्ट्स मेरे को सूटेड हैं फॉर गेटिंग आउट ऑफ द लोड पोर्ट। आई हैव टू चेक दैट आउट। सर एक क्वेश्चन ये था सर, जैसे जो ट्रिम टेबल है सर वो 5 और 7 पे दे रखी है, ये तो राउंड ऑफ नंबर हो गए, बट ऐसा तो प्रैक्टिकल नहीं है, तो बीच में हम इंटरपोलेट कर सकते हैं? तो वहाँ पे इंटरपोलेट यहाँ पे कर सकते हैं। एक्चुअल में शिप पे हमारे पास 5, 5.25, 5.5, ओके 6 हर एक का होगा। ओके ओके, यहाँ पे इंटरपोलेट कर लेंगे, वहाँ पे होगा। यहाँ पे इंटरपोलेट कर लेंगे, वहाँ पे होगा मेरे पास। ठीक है जी। ठीक है, इज दैट ओके? यस।
Anybody has any doubt in understanding कि मैं क्या कर रहा हूँ? Clear है? Okay. सर क्वेश्चन फ्रेम वाइज आएगा कि सर ये होल्ड वाइज आएगा हमेशा? क्वेश्चन मैंने फ्रेम से आपको समझाने की कोशिश करी है ताकि जहाज में फ्रेम होता है, लेकिन यहाँ पे वो आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाइज, CG ऑफ द होल, so many meters from aft perpendicular, ऐसे करके आएगा. सर ये सर यहाँ पे जो मतलब करेक्शन आया ना, ये 23 to 1.5 मैंने जो किया, तो वो कुछ 34.5 जो आ रहा है करेक्शन, तो 34, ये 34 आ रहा है. ओके, 34. 34 Yes, 34 euros. ओके, इसको 34 कर देता हूँ, मैंने गलत बोल दिया. ओके, 34. हाँ, Okay. तो सर ये जो करेक्शन आएगा इसको अपन सर ये लगा रहे हैं सीधा मीन ड्राफ्ट में, है ना? ये अगर फॉरवर्ड, ये सीधा फॉरवर्ड एंड आफ्ट ड्राफ्ट्स में. अगर मेरे पास फॉरवर्ड एंड आफ्ट ड्राफ्ट 6 and 8 मीटर दिया हुआ है, हाँ 6 and 8 मीटर दिया हुआ है, तो माय मीन ड्राफ्ट इज 7 मीटर. हाँ हाँ वही तो मैं वही मीन ड्राफ्ट की टेबल में घुसा, तो मैं ये सीधा फॉरवर्ड एंड आफ्ट ड्राफ्ट, ये मेरे को TF और TA लगा रहा हूँ सीधा वही टू द फॉरवर्ड एंड आफ्ट ड्राफ्ट. ठीक है सर. इज दैट ओके? हाँ सर, जो अगर सर हम होल्ड में लोडिंग डिस्चार्जिंग करते हैं तो हमें TF मिलता है, करेक्ट. और अगर हम DP टैंक में ब्लास्टिंग करते हैं तो हमें इमर्शन और राइज मिलता है. नहीं नहीं, वहाँ पे भी TF TA है. ट्रिम टेबल्स में TF TA मिलेगा. तो वहाँ पे सर आपने TF नाम ले लिया इसलिए पूछ रहा था. नहीं, TF TA, वहाँ पे हमेशा भी TF, TF. वहाँ पे भी TF TA. ओके सर. So TF TA. Okay, now one question to the class. Supposing ये मेरा ड्राफ्ट फॉरवर्ड और ड्राफ्ट आफ्ट मैंने कैलकुलेट पूरा प्रोसेस किया लंबा चौड़ा एंड करके मेरा फॉरवर्ड ड्राफ्ट आया सपोजिंग 7.5 मीटर्स एंड आफ्ट ड्राफ्ट मेरा सपोजिंग आया 8 मीटर्स. सपोजिंग, ये बाई चांस की बात कर रहा हूँ. तो जब मैं एक्चुअल ड्राफ्ट कैलकुलेट देखूंगा जाके विजुअल, तो मैं देखता हूँ कि वो 7.5 एंड 8 नहीं है, बल्कि 7.6 एंड 8.1 है. मतलब सारी लोडिंग करने के बाद सर. सारी लोडिंग करने के बाद. एक्चुअली ये तो मैंने कैलकुलेट किया था. दिस वाज माय कैलकुलेटेड ड्राफ्ट प्री लोडिंग. दिस वाज ऑल डन प्री लोडिंग. ओके. और जब मैंने एक्चुअली करा तो मैंने पाया कि माय एक्चुअल ड्राफ्ट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द कैलकुलेटेड ड्राफ्ट्स. व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट? सर सर कांस्टेंट ये वही कांस्टेंट constant. एग्जैक्ट ना होगी सर. Okay. So one is the stresses, the hog and the sack. Okay. कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू. Okay, constant is another one. लिस्ट हो सकता है सर. लिस्ट चलो मैंने अपराइट रखा जहाज को. सर रिवर में लोड कर रहे हैं तो स्पॉट हो सकता है उस टाइम पे हल्का सा. मैं मूव तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अलॉन्ग साइड ही बैठा हूँ. नहीं सर, पानी तो नीचे से मूव कर रहे हैं, स्पॉट तो उस कंडीशन में भी लगाते हैं ना सर. ओके, चलो ठीक है. अगर 5-6 नॉट का करंट है तो 4-5. ओके, अगर करंट बहुत ज़्यादा है तो चलो ठीक है. तो बेसिकली ये जो कैलकुलेशन, ये वाला जो फिगर है, ये 23, ये 14.3, ये यार्ड ने जो लिया है और ये जो कैलकुलेट, ये जो वैल्यूज हमको दी हैं इसमें, ये उसने एट अ सर्टेन TPC लिया है. यस सर. हाँ सर, ये सर. अब वो TPC तो बदलता रहेगा क्योंकि मेरा मीन ड्राफ्ट 7 मीटर तो नहीं है, मेरा तो मीन ड्राफ्ट बढ़ता जा रहा है. वाटर प्लेन एरिया चेंज होता जा रहा है. करेक्ट सर. तो मेरा वाटर प्लेन एरिया चेंज होता जा रहा है. यस सर. क्योंकि मेरा वाटर प्लेन एरिया चेंज होता जा रहा है तो मेरा TPC चेंज हो रहा है. यस सर. तो मेरे कॉन्सिक्वेंटली मेरे ये वैल्यूज जो हैं ये भी चेंज होते रहेंगे, होने चाहिए बट नहीं होते. सो एज अ रिजल्ट ये जो मेरा ड्राफ्ट आएंगे, दे आर गिविंग मी अप्रॉक्सीमेट completion drafts. They are giving me approximate completion drafts. पर सर हम ड्राफ्ट के हिसाब से तो कर रहे हैं इसका कैलकुलेशन. ड्राफ्ट से कितना कर रहे हैं, लेकिन मैं तो 7 मीटर पे कर रहा था, लेकिन अब तो मेरा ड्राफ्ट जो है 7.7 आ चुका है. वो तो ठीक है सर. मेरे पास तो टेबल ही 7 मीटर का है. But practically we have the draft as per this particular, no sir. Practically we have the drafts So for तो ये अगर ट्रिम टेबल में ड्राफ्ट 7 मीटर का ही रहेगा, वो तो हमारा जितना शिप हमारा कैन होल्ड मैक्सिमम ड्राफ्ट. लेकिन मेरे पास वहाँ पे जो ड्राफ्ट्स होंगे वो 7.5 के होंगे या 7.7 का होगा, बट 7.55 का नहीं होगा. ओके, या 7.60 का नहीं होगा, या 7.62 का नहीं होगा. कंटीन्यूअस चेंज होगा वो तो सर. वो तो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है. इट्स अ कंटिन्यूअस इवॉल्विंग प्रोसेस. सो एज अ रिजल्ट द वैल्यूज व्हिच आई गेट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन इज एन अप्रॉक्सीमेट कंप्लीशन ड्राफ्ट कैलकुलेशन. दैट इज, इट इज एन अंडरस्टूड थिंग. इट इज एन अंडरस्टूड थिंग. ये अप्रॉक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट नहीं है. So इसका मेन रीजन ओनली TPC और सेवरल रीजन इज देयर. Several reasons are there. The stresses are there, hog sag is there, TPC is there, stresses are there, all the factors which you listed, all of them are there. Scott is there, you said Scott, that is also there if you're in the river with a high current.
Then if you are in a river, the density of the water keeps changing. उसकी वजह से भी हो सकता है. Yes. So basically कहने का मतलब ये है कि इससे आपको अप्रोक्सीमेट मिलता है, ये एग्जैक्ट नहीं है. तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड ऑन दैट. ठीक है, इज दैट ओके? सर सेम थिंग हैपेंस विद द लोडिकेटर ना, जो Same, ड्राफ्ट आते हैं मतलब है ना, बिल्कुल ठीक, वो बिल्कुल भी ठीक, उसका डिफरेंट है. एब्सोल्युटली राइट. लोडिकेटर बेसिकली यही वैल्यूज को लेके ही बने हैं जो यार्ड ने दिए हैं. तो हमारा लोडिकेटर भी यही करता है. सर वो मतलब वो तो सर वो नहीं करता सर टीपीसी वगैरह का एस्टिमेशन, वो तो कर लेना चाहिए सर. लेकिन वो चेंजेस नहीं कर पाता. अच्छा वो सर चेंजेस जो नहीं कर पाता. लोडिकेशन का जो करेक्शन हम एस्टिमेट रखते हैं कि इतना हाँ. ऐड करना है, इतना सब्ट्रैक्ट करना है, हाँ. नॉर्मली जो प्रैक्टिकल में रखते हैं वो हम्म. तो सर कांस्टेंट रखते हैं, तो हम्म. ड्राफ्ट के हिसाब से रखते नहीं हम सर. हम्म. सर जो नॉर्मली जो रखते हैं सर 0.25 पोस्ट फॉरवर्ड में इतना करेक्शन है, 0.38 में करेक्शन है इन लोडिकेटर, हाँ. जो हमारा ड्राफ्ट आ रहा है इंडिविजुअल ड्राफ्ट में. हम्म. वो तो हमारे ड्राफ्ट के हिसाब से तो होता नहीं है. अगर 7 मीटर का ड्राफ्ट है तभी उतना करेक्शन ऐड करेंगे, 10 मीटर का ड्राफ्ट तभी उतना करेक्शन ऐड करते हैं. सो देयरफॉर वहां पे फिर वो बात हो जाती है कि बेसिकली यू नो द एक्सपीरियंस फैक्टर ऑफ योर लोडिकेटर, राइट? यू नो कि मेरा लोडिकेटर का इतना मेरा डिफरेंशियल आता है फ्रॉम द एक्चुअल, हाँ राइट? सर. तो देयरफॉर यू नो कि इसका इतना एक्सपीरियंस फैक्टर है इस लोडिकेटर का जब जहाज फुली लोडेड है. Similarly, you also know the experience factor of the loadicator when the ship is empty. Yes sir. So therefore, you allow for that experience factor, and then you predict and extrapolate, and then tell okay, what will be the actual final drafts, which is also an approximate one, but it is a more accurate one because क्यों? क्योंकि आपने उसमें अपना experience factor घुसा दिया. So वो आप जब by as a experienced mate बन जाते हो जहाज पे, you know the ship too well and you are very confident, then you start doing those things. सर एक ऐसा डाउट है सर, जहाज पे सर धीरे धीरे मतलब ना ड्राई डॉक से पहले पहले काफी सारा मड और सेडिमेंट इकट्ठा होता है, मतलब बैलास्ट टैंक में भी और ऑयल टैंकर्स में, अपने क्रूड ऑयल टैंक्स में भी. तो सर अपन तो उसका मतलब कुछ नापते नहीं है उसमें, अपन जो जो करें उतना ही करते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा डिफरेंस आता है ना. बिल्कुल आता है. तो दैट इज द रीजन व्हाई जब आप ड्राई डॉक में जाते हो, so that is all that mud which you are talking about, that is causing a huge amount of loss of revenue to your vessel. यस सर. So therefore on these old ships जब हम 20 year assess करते हैं स्पेशल सर्वे, तो it's a good practice to tell your company कि let us open up the bottom plating of couple of dBs. okay, open up means कट कर देते हैं उसकी bottom plating, एक प्लेट को काट देते हैं बॉटम से, ठीक है, and hose it down, that dB is hosed down, okay, and demucked, सारा का सारा कचरा जो है नीचे डॉक बॉटम में फेंक दिया जाता है. एंड इट्स अ गुड आइडिया टू प्लान इन अ स्टैगर्ड वे कि अच्छा इस ड्राई डॉक में वी विल डू डीबी नंबर 1 विंग्स 2 विंग्स एंड 3 विंग्स, नेक्स्ट ड्राई डॉक में 4 5 एंड 6 उनको करेंगे ऐसे स्टैगर करके. ओके, एंड सो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years you would have actually taken out a lot of muck and the vessel can then load more cargo and therefore earn more freight. यस सर. So this can amount to, on a 50,000 tonner, this can amount to a good 300 to 400 tons of muck. So Yes, उसके sir. साथ so when you hose it down in a good way, then वो सारा जितना descaling होती है वो भी हो जाती है, तो जितनी rust होती है वो भी चली जाती है, because rust also adds weight, right? So on Yes. all these 15 and 20 year old vessels, it's a very good practice to do this. सर वो बॉटम प्लग्स होता है ना सर, बॉटम प्लग्स भी हो सकते हैं ना उसके लिए. बॉटम प्लग्स तो बड़े इतना तो छोटा सा पानी- होता है, वो तो खाली पानी आता है. बस वो पानी निकाल लेता है, वो वही गरीमत है. ठीक है सर. वो मक नहीं निकाल सकता और वो स्केल्स नहीं निकाल सकता, वो जी तो सर. बेचारा इतना छोटा सा होता है. ओके सर. तो इसलिए इट्स अ गुड आइडिया टू कट द प्लेट. So you have to tell the company that I wish to do this on a 10 year SS or a 15 year SS. You don't do it on a new ship. नए जहाज़ों में नहीं करते ये सब. But जैसे ही 10 से ऊपर हो जाता है तो you start doing this. ठीक है, is that okay? यस सर. So ये चीज़ बड़ी कॉमन है. Now keeping this in mind, let us come to question number 83. So question number 83 में अब वो MV Hinge ship is floating at a draft of forward 5.45 meters, aft 6.53 meters. So mean draft कितना बना? I'm just taking the value from the book. It's 5.99 meters, यानी कि 6 मीटर हो गया. And now it is going to fill up number 1 DB tank with water ballast. So DBT 1 is filled up with water ballast tank. So how much will be the change in draft? So go to DB number 1.
Go to DB number 1 on page number 27. Water ballast. So now you will have to do the interpolation for 6 meter, right? 31.8 and 30.2. 31.8 and 30.2. So mean is 31. So plus 31. Yes, sir, Do 31. you all agree on this? So plus 0.31. Aft is 15.1, no, sorry, 18.3 and 16.4. So differential of about 2. So 1. So 17.3. 17.3 या 17.4 ले लो. So 17.3. minus 17.3. Okay. Or 173. Is this okay? Yes, sir. So that means at the end of this operation, this will be my final drafts. Then उसके बाद she has discharged 120 tons of cargo from number 2 twin deck. And the location is 99.5 meters forward of AP. Forward of AP. Now you go to 90 for 6 meter mean draft. So I'm going to 6 meter now. 5 का है मेरे पास and 7 का भी है, तो 6 का मुझे मीन लेना पड़ेगा. And I have to go 99.5 meter forward of aft perpendicular. ठीक है. अब 99.5 meter forward of aft perpendicular. Now कैसे लोगे? कैसे लोगे? Tell me. So the first column, नहीं, first column देखो, distance of CG of the load from midship in meters. Okay. So 3 aft, 3 forward. The LBP of hingeship is 143. So midship will be 143 divided by 2. That is 71 and a half. Agreed? Yes, sir. 71 and a half. This is ये सेंटर से आगे पीछे ये midship से आगे पीछे है इसमें दिया हुआ, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये. ठीक है. 99.5 minus 71 कितना बना? 99.5 minus 71 27.5 के करीब सपोजिंग. तो मुझे 27 मीटर्स फॉरवर्ड ऑफ मिडशिप जाना है. सर 58 पे आ गया सर. तो मैं 27 मीटर्स फॉरवर्ड पे चला गया, यानी कि फ्रेम नंबर 126 पे चला गया मैं. Yes. एग्रीड और नो? सर समझ नहीं आया था. नहीं आया समझ, नहीं समझ आया. नहीं सर, समझ नहीं आया, दोबारा बताइए सर. अच्छा. एमवी हिंशेप की लेंथ 143 मीटर्स है. सो मिडशिप कितना होगा? 143 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 71 एंड हाफ. Yes, sir. सो 99.5 माइनस 77.5 कितना बनता है? 27 मीटर्स फॉरवर्ड ऑफ व्हाट? फॉरवर्ड ऑफ मिडशिप. एग्रीड और नो? हाँ जी. Yes, sir. Yes, sir. सो मुझे उसकी वैल्यू बताओ. अगर 5 मीटर होता ड्राफ्ट सपोजिंग, तो 5 मीटर पे कितना आता? 27 फॉरवर्ड. फ्रेम नंबर 126. Plus 11.9. करेक्ट. प्लस 11.9 एंड आफ कितना होता? Minus 3.3. Minus 3.3. Is this okay with everyone? This is for 5 meter draft, mean draft. Is this okay with everyone? Now I go to 7 meters for the same. Plus 11.6. Plus 11.6 Minus 2.9. minus 2.9. में है एडिशनल. Is that okay? I find Yes. out. So for 6 meter, how much is my value? Plus 11.75. 11.75. 8 ले लो, no problem. And minus 0.4 का differential 0.2, 3.1. Agreed? यस सर. Yes, sir. ये 100 टन के लिए है. मैंने डिस्चार्ज किया 120 टन, तो फैक्टर मेरा 1.2 से करा. क्या वैल्यू बनी? सो जो भी वैल्यू आती है प्लस, सर जो वैल्यू आएगी साइन ऑपोजिट हो जाएगा ना. अभी मैं साइन अभी ये मैं सब ये एक्चुअल साइन जो लिखे हैं वो ले रहा हूँ. Okay. यहाँ पे जब जाऊंगा मैं डिस्चार्जिंग है तो साइन को उल्टा कर दूंगा. ऑपोजिट. ठीक है सर. तो इन रियलिटी ये मेरा साइन जो है अभी प्लस चल रहा था, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि मैं आगे से डिस्चार्जिंग कर रहा हूँ. यस सर. ये मेरा प्लस हो जाएगा क्योंकि मैं आगे से डिस्चार्जिंग कर रहा हूँ. यस सर.
सो 11.8 into 1.2 क्या वैल्यू आती है? 14.16 14.16. तो टू प्लेसेस टू द लेफ्ट मैंने किया, तो फॉरवर्ड ड्राफ्ट 0.142. इज दैट ओके विद एवरीवन? ये समझ में आया कि नहीं? सिमिलरली इसको किया मैंने, ये सपोजिंग आया -3.7. इसको इधर शिफ्ट किया तो 0.037 आ गया, ये प्लस हो गया। ये समझ में आया कि नहीं? यानी कि मैं ऐसे करते हुए जाऊंगा फॉर एवरी वेट दैट आई एम डिस्चार्जिंग और लोडिंग, एंड फाइनली मेरे को मेरा फाइनल अप्रोक्सीमेट ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड अप्रोक्सीमेट ड्राफ्ट आफ्ट मिल जाएगा। सर कभी-कभी केस ऐसा भी हो सकता है कि सर ड्राफ्ट पॉइंट में ये फ्रेम पॉइंट में भी आ सकता है सर 0.5 करके। ऐसा नहीं है क्या मतलब? सर आज सर 27 आया था ना सर 99.5 -71.5। हाँ। तो अगर सर 99 सपोज दे देता सर लोडिंग का वो हाँ। तो 27 हो जाता सर 27.5 होता सर वो। तो भी लोकेशन वही रहेगी। तो सर मैं इंटरप्रेट करना पड़ेगा इसको कि नहीं, हम लोग नहीं, उसको नहीं करना। So basically you will get your final approximate drafts forward and aft, and whatever you are asking me, you will take whatever is the nearest location that is given to you. You will take that only. You will not. सर ये मेन ड्राफ्ट हर कंडीशन में चेंज होता रहेगा ना? बिल्कुल consider नहीं ठीक, करेंगे? यही बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। ये मीन ड्राफ्ट हर कंडीशन में चेंज होता रहेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दैट। सो इसके बाद में ये मीन ड्राफ्ट बन जाएगा, मतलब ये 5.76 बन जाएगा और ये कुछ और बन जाएगा। हर स्टेज पे मीन ड्राफ्ट बदलता रहेगा। दैट इज व्हाई आई सेड दिस इज व्हाट यू विल गेट विल बी अ फाइनल अप्रोक्सीमेट ड्राफ्ट, कैलकुलेटेड पूरी कैलकुलेशन सर हर बार मीन ड्राफ्ट बदल के कैलकुलेट करेंगे कि एक भी करते चले जाएं? बदल के करना पड़ेगा ना सर। एक्चुअल में तो बदल के करना चाहिए, और सर एग्जाम पर्पस में वही करना पड़ेगा सेम, लेकिन एक बार हाँ ठीक है, एग्जाम पर्पस के लिए एक ही करना पड़ेगा। एक स्टेप तो कम हो जाएगा सर। हाँ, लेकिन एक्चुअल में ऑन बोर्ड यू हैव टू डू इट ईच टाइम। ठीक है सर। So therefore one of the limitations of this method is you can't use it for large loading. मतलब अगर मैं 5000 टन लोड कर रहा हूँ, I can't use it. हाँ सर, तो लास्ट में जो आपने बताया छोटे पार्सल के लिए रह जाएगा। बस ये वो छोटे वाले जो पार्सल है उसी के लिए रह जाता है आखिर का, ताकि मैं अपनी एक फाइनल ट्रिम निकाल सकूं जो मेरे को चाहिए, जिससे कि मेरे को डिपार्चर करना है। यस सर। So generally when you load in rivers ना, तब ये बहुत काम आता है। Like when I've done it lot many times in St. Lawrence River and all that, we used to do that. So वहाँ पे ये बड़ा यूज होता था इसका। But nowadays when you have such fantastic lubricators and all that, you don't need this. इतना ज़्यादा नहीं है उसका use. Yes sir. So also depends on which quantities are going to be calculated. You know, sometimes there's a dispute between the ship's quantity and the shore quantity. And आजकल तो charter parties में directly लिख दिया जाता है कि shore figure will be taken into account, irrespective. Ship's figure doesn't have any value. हाँ But so उस पे भी मैटर करता है बहुत। दूसरा सर वो 0.3 क्लॉज रहता है तो वो भी एक्सेप्टेबल लिमिट में डाल के छोड़ देते हैं। वो भी है। So it depends on which port you're loading where and which final figures will be taken. Will the ship's figure be taken or the shore figure be taken? So उस पे बहुत मैटर करता है। तो ठीक है, ऑलराइट। सर हाँ जी सर, सुबह सर आप जब वो वाला डाउट बता रहे थे ना, मेरा बीच में नेटवर्क अटक गया था। सर ये वाला जब क्रिटिकल पीरियड वो ग्राउंडिंग में सर जो वो पी का फार्मूला लेना है ना सर, उसमें सर ये लॉन्ग फार्मूला क्यों नहीं लेना? और ये उस टाइम आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो बीच में बार रटक रहा था। बिकॉज़ मेरे पास लॉन्ग फार्मूले का राइट हैंड साइड तो मुझे दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। सर वो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट का अगर हम लोग मतलब वो मीन मतलब कैसे वो मान लें तो वो नहीं होगा सर फॉल ऑफ वाटर लाइन? नहीं, because I've not got grounded at the hydrostatic draft ना। I've not got grounded at the center of rotation. Yes sir. If I had got grounded at the center of rotation, then whatever you are saying holds good. Yes sir. But I got grounded somewhere else. हाँ वो तो ठीक है सर। इसलिए ठीक है सर। That's why. ओके सर। चलो, let's stop here. Okay.